भी अपना क्वेश्चन डाउट जो भी है वो पुट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ 8-10 मेमोरी बेस्ड है, करेक्शन हो सकते हैं, बट स्टिल विल डिस्कस दैट। With that we will also discuss paper level. So let's just begin for today. Today's goal is very first is that we will talk about review, paper कैसा था. Second we will talk about memory based questions, and third we will do somewhat we call it panchayat. Okay, so सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ क्या जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो चारों तरफ घूम रहा है अभी. सो आई विल आंसर दैट. कट ऑफ क्या जाएगा किसी को नहीं पता है, जो पेपर दे के आए हैं उनको तो नहीं पता है, जो नहीं दे के आए वो बता रहे हैं कट ऑफ क्या जाएगी. ठीक है. उन्हें पता भी नहीं है पेपर कैसा था, क्या आया है. यू नोज बेटर कि पेपर कैसा था. ये लगभग 59 लोगों ने इसमें वोट किया है, पार्टिसिपेट किया है. उन लोगों का ये सजेशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि उन लोगों को खुद कैसा लगा ये पेपर. 71% people found this paper to be moderate, and 15-16% people found this paper to be difficult. So अगर आप ओवरऑल पेपर का मार्क करोगे और जैसे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, आई कैन से दैट योर पेपर लेवल वाज मॉडरेट. ठीक है, जैसे क्वेश्चन मुझे मिले हैं. अगेन मैंने पेपर नहीं देखा है. कुछ लोग हैं जिनको 7% people found it easy, and some people found it easy to moderate. So yeah, that's mixed up. So last time जब मैंने पोल किया था तब लोगों का सजेशन था that the paper was easy to moderate. Okay, and now it's moderate. So you can just think कि आप कट ऑफ को कैसे मैनिपुलेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर. Now let's move to the next part where we talk about some memory based questions. Okay, so let's move to the very first question. लीनियर अलजेब्रा कैसा आया था, लीनियर अलजेब्रा का रिव्यू कैसा है. देखो हफ्ते भर में पेपर आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट कैसा आया, क्वेश्चन क्या थे, वो पूरा एनालिसिस हम करेंगे आराम से बैठ के. बट राइट नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस दैट. ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट x and y are two matrices and xy is equal to x square plus x plus 1 x plus I. Then what can you say about the matrices? Okay, so if you consider this question, it was not straightforward, not easy question. Let me solve this for you. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, if you find any correction in the question, you guys can just put it in the comment section कि कौन से ऑप्शन में क्या करेक्शन है. I can make it right now. I think आप सारे लोग पेपर दे के आए होंगे. So yeah, let's just continue. ऐसा क्वेश्चन अगर आप सिमिलर देखोगे तो एक इस टाइप का सा क्वेश्चन जैसे मैं सोल्व करूंगा वैसा पहले नेट में पूछ चुका है वो. लेट मी सोल्व दिस. या गुड इवनिंग मोनिका, प्रिया. इसमें आप सिंपली क्या करिए, देखो एक ऑप्शन में पूछ रहा है आपको वेदर x इज इन्वर्टिबल और नॉट. आई कैन सी कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो आई विल डू दिस. एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस सिंपली implies that x times y minus x, this as a matrix A, and I consider this as a matrix B, then A cross B is identity matrix. This simply implies that A and B both are invertible, right? So A is invertible, yes, and what is RA? A is X, because AB is invertible, A and B both must be invertible. So X is invertible, option number 1 is true. Now let's move ahead. The last one says that Y is invertible. I'll simply consider Y to be 0 matrix. Let me take Y equal to 0 and see what happens. If I take Y equal to 0, I get X square plus X plus I is equal to 0. Now can I have such matrix which satisfy this equation? Yes, I can have a real matrix which satisfy this equation. So Y need not to be invertible. Let's move ahead. It says that X plus I is invertible, and it says that XY and YX commutes. Now let's see whether X plus I should be invertible or not. Let me solve this one. Okay, so X plus I is invertible. What I do first is I take X equal to Y and see what happens. If I take X equal to Y, what I'll get is I'll get X square is equal to X square plus X plus I. Now if I take both of them, all of them identity, X equal to Y equal to I, then what happens? I square, it's again I cancel out, and 2I equal to 0, which is not getting satisfied if I take I. But I can see one thing, that if I take X equal to Y equal to minus I might get some solution. Okay,
So let me take x equal to y equal to minus I, and let's plug this in and see what happens. If I put here, I get xy, that will be again I, is equal to x square, that will be again I, plus x, that will be minus I, plus I. Okay, so I can easily see that the equation is getting satisfied. We are getting I is equal to I, right? So minus I is working, that if I put x and y both to be minus I, the equation, this given equation, is getting satisfied. And if you take x equal to minus I, is this matrix invertible now? If I take x equal to minus I, then x plus I is simply zero matrix. Forget about invertibility, we are getting a zero matrix. Is it fine? I hope it's fine. So we can discard option number 2. Now we have to look for option number 3, that xy and yx commutes with each other. Okay, so let me solve the last option as well. I don't know how you did it in the exam, but I can solve it like this. Okay, just give me a second. All right. So now I have that x. Okay, just I have. Give me a second. Something is wrong. Yeah, I hope it works fine now. I have xy is equal to x square plus x plus I. Okay, and if I take x to be common, I get y minus x minus I is equal to I. This is what I get. But from here I'm just getting that x is invertible. Right? Nothing else. That's all I'm getting. I'll use this information and go back here, come back here, and operate x inverse both sides. I'll get x inverse xy is equal to x inverse x square plus x plus I. Means all this now, I get y is equal to, I multiply x to inside this, I get x plus identity plus x inverse, right? That is my y. Now I operate x from the right hand side. Let's see if that do. This implies yx is equal to, I operate x into this side, so I have to multiply x into all. I get x square plus x plus identity. So I get yx is equal to x square plus x plus identity, and xy is also x square plus x plus identity. Can I conclude that x and y commutes? Yes, I can. Okay, so in that case, we can select option number 3 as well, and hence correct answers are first and third. हो रहा था पेपर में. It's not easy question. It's not. Okay. इसमें थोड़ा मैंने ग्रुप थ्योरी का दिमाग लगाया and somewhat from the linear. Okay. But yeah, sure, it's not easy question. Let's move ahead. इसमें first and third are correct. अगर question में कोई error है, you guys can tell me. Let's move ahead and talk about next question. Sequence and series. This question straightforward. इसमें कुछ लोगों ने मुझे ये वाला क्वेश्चन अलग बताया है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं बताया है. But let's look at all the options. The first one gives us summation log of 1 plus 1 upon n square. Okay, I can easily tell that the series is of positive terms. Yeah, good evening. Because log 1 plus x is positive for all x positive. Again, I also know an inequality. What is that? That log 1 plus x is less equal to x for all x positive. This implies log 1 plus n square, 1 plus 1 upon n square is less equal to 1 upon n square for all n belongs to n. This implies that summation log of 1 plus 1 by n square is less equal to summation 1 by n square. And hence, by comparison test, since sum 1 by n square is convergent, so is your right hand left hand side by comparison test. Okay, because this is series of positive terms and bounded, and hence sum an is convergent. So option D is gone, option A, B is also gone. Now I have to look for this sign
it's like n pi plus 1 upon n square. Someone is giving me this one, and someone is giving me this exact thing which I'm having here. In both the case, you can easily see that both, even if it is this series or this series, the series is convergent. Okay, because you can use here sin a plus b formula, and you will get sin 1 by n square, and if you use here, you will get minus 1 to the power n plus 1 sin n pi upon square root n, something like that. So you will get convergent again. So both are convergent in this case. Correct answer is option C. Let's move ahead. This question लड्डू बटे हैं लीनियर अलजेब्रा में. ai j is equal to I into j. 3 क्रॉस 3 की सिंपल मैट्रिक्स बनाइए और ऑप्शन डिस्कार्ड कर लीजिए, आराम से हो जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनफ. करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. This question, Roche's theorem, straightforward question. How many roots of the complex polynomial fz is equal to z to the power 50 minus 40z to the power 4, 50z to the power 30 plus z plus 1 in mod z less than 1? Roche's theorem, you look for the highest coefficient when mod z less than 1, and the highest coefficient is of z to the power 30, which is, z to the power 30, which is 50. Okay, so if I take mod z equal to 1 and I consider fz is equal to 50z to the power 30, and rest of them I consider it to be zz is equal to z to the power 50 minus 40z to the power 40 plus z plus 1. And if I put, so I can easily see that the mod of gz is less equal to 1, 41, 42, 43, 43, and this mod of fz is less equal to 50. Okay, so it's actually 50, equal to 50. So this implies that mod of g is less than mod of f for all mod z equal to 1, and this simply implies that the number of zeros of f plus z is same as the number of f. And how many zeros f has by Roche's theorem? It is exactly 30 zeros. Okay, so we'll get correct answer to be option A in this case. A is the correct answer. Okay, 30 zeros. If the question is fine, if the numbers are fine. अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ issue है, you guys can just tell me. Okay. All right. Let's move ahead to the next question. Which of the following are not necessarily true? It was true. Okay, true. V has unique. अच्छा, क्वेश्चन भी नहीं छपा है ढंग से. क्वेश्चन वाज दैट आपको दे रखा था zp टू दी पावर, zp दे रखा था ओवर zpn, है ना, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस zpn ओवर z ओवर फील्ड zp. फिर पूछ रखा था v has a unique basis, precisely two bases can be written as union of its proper subspaces, है ना. तो यूनिक बेसिस होना जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू. हैज अ प्रिसाइसली टू बेसिस, ये भी जरूरी नहीं है. कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, ये तो बिल्कुल नहीं होता. कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ थ्री स्पेसेस, ये भी जरूरी नहीं है. तो कोई जरूरी नहीं है इनमें से. ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन पेपर में आ गया. ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है इन सम सेंस, नॉट एग्जैक्टली. और अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था ये वाला. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0 पूछ रहा है, रिमूवल सिंगुलर डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, लिमिट ही नहीं दे रहा है. सो दिस विल नॉट हैव रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट 0. and if you look at here, then at 0 you are getting you are not getting the limit, so it doesn't have removal either. And this one give you limit at 0 which will be 0 and which is equal to value. So this one has removal discontinuity at 0, first one. Okay, then there was this question from the complex analysis. Last वाले का आंसर कौन सा वाला है ईशांत? Which one? Vector space वाला. If the question is fine, if it is ZPN over ZPN, then none of them are true. Like यूनिक बेसिस होना भी जरूरी नहीं है, प्रिसाइसली टू बेसिस होना भी जरूरी नहीं है, कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब स्पेसेस, ये भी जरूरी नहीं है. तीन के स्पेसेस में कुछ केस में लिख सकते हैं,
बट हमेशा 3 में लिख पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है ना। तो आई थिंक ये चारों के चारों ही फिर नॉट नेसेसरली ट्रू। ओके, सो या चौथे के लिए काउंटर ढूंढना थोड़ा टास्क होगा, है ना। अच्छा, सिंगल क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। ओके, फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। हाँ, क्योंकि सी यूनिक बेसिस होना नॉट नेसेसरली ट्रू, प्रिसाइसली टू बेसिस, कोई वेक्टर स्पेस के पास टू बेसिस हो सकते, बट फॉर ऑल एन इट इज नॉट ट्रू ना, फॉर ऑल एन इट इज नॉट ट्रू। सो आई थिंक आइदर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन और इन द ऑप्शंस, एंड वी हैव टू चेक। इसमें ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला इज करेक्ट आंसर, बिकॉज इसकी जीरो पे लिमिट मिल जाएगी आपको, है ना। इफ यू फाइंड लिमिट एट जीरो ऑफ दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, assign 1 by x, so at 0 it will give you limit, right or not? चेक कर लेना एक बार है ना, पता चले ना आ रही हो लिमिट। if I find limit at 0, so I'll get h sin 1 by h, and if I look for the so यहाँ से तो लिमिट जीरो आ गई पॉजिटिव में, तो if I look for negatives I'll get minus h sin 1 by h, and minus h will give us minus 1, will it? नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही, माइनस एच पे नहीं मिलेगा ना, बिकॉज आई गेट माइनस वन sin 1 upon h, like as h tends to 0 I'll get minus 1 because it's negative something, and the greatest integer in the negative part is minus 1, so this doesn't give you limit, it doesn't goes to anywhere, है ना। sin 1 by h is sin 1 by h doesn't give you limit at 0, so this one also doesn't have limit at 0, इसके पास भी जीरो पे नहीं है, इसके पास भी जीरो पे नहीं है, e to the power infinity doesn't have limit, अगर यहाँ माइनस है तो मिल जाएगी, माइनस नहीं है तो नहीं मिलेगी। आई डोंट नो एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान ही काउंट होगा, सिंपली यू हैव टू चेक लिमिट इक्वल टू वैल्यू। एक ये क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट ही माना जाएगा ये, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस। ये बहुत ही कम लोगों से सही हुआ होगा एग्जाम में, लाइक वेरी लिमिटेड। बाकी ऑप्शन सब ठीक है, बट कुछ ऑप्शंस जो थे वो अच्छे थे, है ना। जैसे let me walk you through one by one। अगर आपको कोई इश्यू है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। ओके, इसके अंदर आपको दे रखा है, कहाँ गया, पाई वन इज ओमेगा वन इज होल सी, एंड ओमेगा टू इज यूनिट डिस्क, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके। आपको इनमें से सही सेलेक्ट करने थे। नाउ फर्स्ट ऑप्शन सेज देयर इज अ होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम पाई वन टू पाई टू, है ना। यानी कि बोल रहे हैं सी से मोड z लेस देन 1 पे एक फंक्शन है जो एनालिटिक है। देखो एनालिटिक तो मिलेगा, बट अगर कोई भी फंक्शन सी पे एनालिटिक है मतलब एंटायर है, और अगर यूनिट डिस्क में कंटेन कर गया यानी कि बाउंडेड है, और बाउंडेड है मतलब कि लिबलियस थ्योरम कांस्टेंट है, तो ऐसा फंक्शन तो कांस्टेंट होगा। जबकि ये बोल रहा है कि ऑन टू भी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन वन इज फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम पाई टू टू पाई वन, यही एक ऑप्शन था जो सबको दुखी करने वाला था। There exists a holomorphic injective function from pi 2 to pi 1, injective 1 1 map, ठीक है। 1 1 का I have to see pi 2 more than less than 1 से C पे 1 1 map, ओके। अच्छा, pi 2 to pi 1 इंजेक्टिव बोल रहा है, वी कैन टेक द आइडेंटिटी मैप, राइट। मोड z लेस देन 1 से C पे 1 1 होलोमॉर्फिक मैप, आइडेंटिटी मैप विल डू। For option B, we have example. That's sorry, option 3. 3 is true. There exists a holomorphic injective function from pi 1 to pi 2. Pi 1 to pi 2 we have to see. Pi 1 to pi 2. Or omega 1 to omega 2, whatever.
omega 1 to omega 2, we need injective function 1 1 map. That map is 1 1, yes, but z square is not 1 1 anymore. I think fourth in option number 4 there will be a problem. In option 2 we have example. Option 2 is fine. There is a holomorphic surjective map from unit disk to the whole complex plane C. So for the second I'm sure option number 2 is true, okay, and third is also true. So 2 and 3 I'm sure. 4 I have to think. Injective I have to see. You can have a surjective function from unit disk to this. The explanation is somewhat like this. I'm not going to give you the exact explanation, but I'll give you a rough idea that how this works. And so explanation is somewhat like this. Why? Okay. So it's like this, that you have the unit disk, and from unit disk you can find 1 1 onto analytic function to the upper half plane. Okay, there is that, such that its inverse is also analytic, and then from the upper half plane you use something like z minus I or something, and you shift this map to this plane, that from upper half plane to this you can find an onto map. So from then you take the composition. Now from here you take square, and that will give you whole complex plane. Okay, so like you can call this function f, this function g, and this function h, and then you take their composition, and you will get in some manner you will take their composition, and then you will get the whole the complex plane. So yes, there is a holomorphic surjective map from unit disk to C. The answer is yes. Okay, so the statement number 2 is true. For 1 1 I have to see. We will have to check whether this map is 1 1 or not. No, it's not, because we are using z square, so it's not 1 1. So we have to check whether there is 1 1 or not. There is a injective from C. Okay, you have to see. For fourth one I have to see. Okay, let's move to the next one. Good evening Ashim, welcome to the class. This one from complex integration, आसान क्वेश्चन था, लड्डू बटे थे. I k is equal to integral mod z equal to 1 e to the power z upon z to the power k dz. Which of the following is true? सिंपल इंटीग्रेशन, एकदम आसान सा, सीरीज खोल लिए काम हो जाएगा आपका, है ना. द करेक्ट आंसर वाज 2 फॉर दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, इट्स इजी. एक ये क्वेश्चन था, ये अब जिसने आसान समझा उसके लिए आसान था, जिसने डिफिकल्ट समझा उसके लिए डिफिकल्ट था. व्हाट वाज द क्वेश्चन? x square minus 7x plus 12 is less equal to 0 and x square minus 9x plus 18 is less equal to 0. इस सेट का स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होगा, इनफिमम पूछा है. ठीक है, मैंने पहला वाला पॉलिनोमियल उठाया, px is equal to x square minus 7x plus 12. ओके, अब मैं एक बार ऑप्शन भी देख लेता हूँ. मुझे सबसे छोटा नंबर दिया हुआ है 3. नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. आई गेट b square minus 4ac, that's 49 minus 48 square root plus minus b, which is 7 upon 2. I get 7 plus 1 upon 2, which is 4, and 7 minus 1 upon 2, which is 3. So two roots for this polynomial are 4 and 3. So the px can be written as x minus 3 x minus 4. ये देखो 3 यहाँ पे आ गया. अब मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूँ कि कैसा दिखेगा ये. इफ आई ड्रॉ दिस फंक्शन, कुछ ऐसा सा दिखेगा ये, देखना ध्यान से. गुड इवनिंग सुवर्णा. अब इस पॉलिनोमियल का साइन 2 बार चेंज होगा, एक तो 4 पे एंड द अनदर पॉइंट इज 3. ओके, these are the points where the polynomial changes sign. अब at 5 I will check कि 5 पे कैसा है. If I put 5 inside it, I get 25 minus 35, okay, and plus 12. I get positive, right? Yes, I get positive. यानी कि यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, नीचे गया, देन 3 पे वापस 0 हुआ, ओके, एंड देन इट केम बैक. ठीक है ना? दैट मीन्स
एट 3 फंक्शन इज 0 एंड 3 से नीचे फंक्शन आपका नेगेटिव है. ओके, सो वॉट एवर दिस u इज 3 इज इनसाइड u, बाकी यहां पे 4 है तो ये 4 भी इस u में है. ओके, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल px, बट अब एंड लिखा हुआ है यानी कि इंटरसेक्शन भी आएगा साथ में. ओके, बिकॉज वी नीड दिस टू बी लेस इक्वल टू 0, और पॉलिनोमियल आपका px जो है वो इतने में ही लेस इक्वल टू 0 है, 3 और 4 के बीच में. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द अदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18. अब क्योंकि 3 यहाँ पे एक ऑप्शन में दे रखा है, मुझे सीधा सीधा चेक करना है कि क्या ये 3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर कर रहा है तो 3 आंसर है, नहीं कर रहा तो फिर इनमें से कुछ होगा. इफ आई प्लग इन 3 हियर आई गेट 9 माइनस 9 9 माइनस 27 plus 18, that is equal to 0. So that's like somewhat satisfying it, and that is your answer. Okay, so otherwise you can again factorize it, इसके भी root निकाल के, and you can follow the same process. Okay, so we are attempting the infimum. Now was this question difficult? क्या ये question difficult था? लाइक यहाँ पे 3 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स यू कैन गो एज क्लोज एज यू वांट टू, है ना. 3 के जितना पास जाना चाहिए उतना पास जा सकते हो. सो दैट कंफर्मेशन वी गॉट बाय जस्ट प्लगिंग इन 3. 3 भी इसका 0 है क्या? 9 माइनस 27 प्लस 18, 3 0 ऑफ दिस एज वेल, इसका भी 0 है. ठीक है, दोनों का 0 है. सो या सो द करेक्ट आंसर इज 3. तो दिस क्वेश्चन वाज लाइक, ये ठीक क्वेश्चन था, नॉट डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं डिफिकल्ट था. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बहुत डिफिकल्ट था, काफी लिमिटेड लोगों से हुआ है. ये क्वेश्चन गलत हुआ है, बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नो, नॉट एट ऑल, लाइक नॉट रियली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन था. मेरे पास टाइप्ड क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम कुछ बातें हवा में कर सकते हैं. एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन था, उसमें मिनिमल पूछ रखा था, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रखा था. बताओ, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नेट में? लड्डू बटे थे, ठीक है. हाँ जी, वो तो तुरंत ही कर दे, सही बोल रहे हो आप. जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक क्वेश्चन था, सीधा सीधा मैट्रिक्स दे रखी थी और उसके अंदर आपसे पूछ रहा था कि इसका मिनिमल क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा. तो दैट आई थिंक वो क्वेश्चन भी इतना कोई आपको डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉक देख के नहीं बना पा रहे हो तो फिर तो प्रिपरेशन में ही कमी रह गई है ना. ऐसा कुछ दिया हुआ था, एज फार एज आई रिमेंबर. आपको एक ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ था 0, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी रखी थी शायद 0 1 0 0, और एक यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें डायगोनल पे आपको 2 पाई आई दे रखा था, है ना. फिर पूछ रखा था इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका मिनिमल क्या आएगा, है ना. देखो, जो सबसे बड़ी साइज का होता है उसी साइज का ब्लॉक होता है मिनिमल में, ठीक है ना. तो सबसे बड़ी साइज यहाँ पे 2 है, तो एक साइज 2 का ब्लॉक आएगा 0 के करस्पॉन्ड, ठीक है ना. बस, और यहाँ पे 3 है तो इसके करस्पॉन्ड एक साइज 3 का ब्लॉक आएगा, है ना. ये सिंगल सिंगल है ना, सिंगल सिंगल है ये, इसको 3 नहीं मान लेना, ये सिंगल सिंगल है. देन यू विल गेट x माइनस 2 पाई आई. अच्छा, एक 1 भी था शायद कहीं पे, तो एक x माइनस 1 भी आ जाएगा, एंड यू विल गेट x माइनस 2 पाई आई. ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी मिनिमल है, मिनिमल ऑफ a. एंड सिमिलरली यू विल गेट कैरेक्टरिस्टिक इज मोर इजी. 3 बार 0 है, सो यू विल गेट x क्यूब x माइनस 1, लाइक दिस. इट वाज इजी क्वेश्चन. ये तो लाइक समझ लो बांट रहे थे वो आपको नंबर की, देख लो जिसको 5 नंबर चाहिए, ठीक है ना, कंसिडरिंग. बट अगर आपको 4-5 क्वेश्चन आसान मिल गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेपर आपका आसान है. एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन ढंग से टाइप तो नहीं हुआ है, बट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्वेश्चन था कैसा सा. ये एक ऐसा क्वेश्चन था, समथिंग लाइक दिस. कॉम्प्लेक्स का ही, मैंने बोला था ना इस बार की आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने के चांस अच्छे हैं. ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ये जीरोज माइनस पोल, है ना. ये थोड़ा सही से टाइप नहीं हुआ है, इसको इग्नोर कर दो. जेड पी माइनस जेड नोट, ऐसे है ना, कि
एक एनालिटिक फंक्शन है एंड देन इंटीग्रेशन एफ डैश अपॉन एफ डी जेड, ये एज इट इज पूछ लिया, साथ में 1/2 पाई आई तो डिवाइड भी कर रखा है, इसका सिंपल n माइनस p वुड हैव बीन आंसर, isn't it? नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। सो ये भी आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मैंने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, बट वही क्वेश्चन याद रहते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों को जो सीधे सीधे आसान से दिख रहे हों, ठीक है, वो क्वेश्चन कम याद रहते हैं जो या तो डील करने लायक ही ना हो या फिर डिफिकल्ट हो। एक क्वेश्चन दे रखा था, एक फाइनाइट सेट दे रखा था एंड उसके बाद में पूछ रखा था एफ इनवर्स 0, तो वो एम्प्टी भी तो हो सकता है, ऑन टू तो दे नहीं रखा था, सो यू कैन गेट अ एम्प्टी सेट एंड देन उसको कंसीडर करके भी यू को डिस्कार्ड मैनी। तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा है वो मैंने आपको बता ही दिया। अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे पता चला है और जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर जैसे बच्चों का फीडबैक है, मैं तो स्ट्रांगली बच्चों की फीडबैक के साथ जाऊंगा। बच्चों का फीडबैक जो है वो है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट, ठीक है। अब कट ऑफ क्या जाएगी ये मैं पेपर देख के बताऊंगा आपको, जैसे पेपर आएगा उसके अगले दिन या उसी दिन फिर से आऊँगा आपके साथ में, तब बताऊंगा कि कैसे कट ऑफ का क्या सीन है, ठीक है। पेपर लेवल वाज मॉडरेट, पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, इस बार हो सकता है कि थोड़ा आपका मामला नीचे आ जाए, ऊपर जाने का चांस मुझे थोड़ा कम लग रहा है। पेपर जो थे, क्वेश्चन जो थे वो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो तुरंत कैलकुलेट हो जा रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ज़्यादा थे। सो इस वजह से पिछली बार काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, हमने देखे भी पेपर में, ठीक है। इस बार इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मुझे अभी तक तो नहीं मिले हैं, सो आई विल कंसीडर इट पिछली बार से थोड़ा डिफिकल्ट जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। बाकी देखो रहता वही है 90 to 110 इसके बीच में, कहीं उससे ऊपर नीचे ज़्यादा होता नहीं है। चलिए, अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ क्वेरीज हैं तो आप भेज सकते हैं। अगर आपका पेपर ख़राब हो गया है, ठीक है, अगर मैं पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखूं तो हर लेवल के क्वेश्चन है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। बेसिक पॉलिनोमियल रूट निकालना, साइन चेंज के रूल, यहाँ से क्वेश्चन है। उसके अलावा सीक्वेंस सीरीज का बेसिक क्वेश्चन आराम से हो जाने वाला है, बिल्कुल है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चन थे 2 थे शायद तक, 1 या 2। और कहाँ से क्वेश्चन चाहिए आपको? एक क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसके डेरिवेटिव के पास एक जीरो है, वहां से ये क्वेश्चन था, है ना, तो उसके प्रिमिटिव के पास कितने होंगे? अब रोल्स थ्योरम है वो बिटवीन 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयर इज एग्जैक्टली 1 zero ऑफ इट्स डेरिवेटिव, तो वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो पेपर जो था वो पूरा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से था जो हम पढ़ते हैं। अगर आपने उनके ऊपर मास्टरी नहीं कर रखी है तो फिर प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके लैक है और आपको दबा के तैयारी करनी पड़ेगी, प्लान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो आपको लग रहा था कि हाँ ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ी है, बट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि आपको उनमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, आज मेरी तरफ से इतना ही। जल्दी कुछ नए कोर्सेज के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आई एम हियर फॉर लाइक 30 more minutes, 30 more seconds, otherwise we are done for today. Anyone, any question? एक क्वेश्चन मेरे पास जहीर की साइड से आया है, बट नॉट हियर। ये तो मैंने देख ली सारे क्वेश्चंस। Anyone, any question? हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाओ, क्यों नहीं सुना। नहीं नहीं, अब बायजूस के साथ हम नहीं कंटिन्यू करेंगे अशांत, हमारा और बायजूस का इतना ही था। ठीक है, एक स्वर्णा का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, थियरी स्टडी। देखो, मैं बारी बारी सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये जो आपकी प्रिपरेशन थी स्वर्णा की, तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन होगी ढंग से, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस के ऊपर जाना है और अब आपको कॉन्सेप्ट समझना, अब ढंग से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक इंट्रोडक्शन आपका हो गया है पूरे कोर्स का, अब आप पढ़ोगे ना एक एक क्लास में, आपको बहुत मजा आएगा।
अब आप स्टार्ट करिए, ठीक है ना। आई थिंक नाउ यू हैव आइडिया एग्जैक्टली कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, अपने आप ध्यान जाएगा ना, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गो देयर, ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज इंपॉर्टेंट, आई हैव सीन क्वेश्चंस, and that's how you will study from now on. Okay, so now you can start better. That's it. आसिम बोल रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ आसिम, क्यों नहीं सुना। प्रिया हैज अ क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का था बट बहुत लेंथी लग रहा था। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे जो आपको इंक्लूसिव थे, टाइम खा रहे थे, एंड उनकी वजह से ही पेपर लोगों का रह जा रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। आसान क्वेश्चन भी थे, एक क्वेश्चन मैंने देखा कि ये था e टू दी पावर आई जेड, ठीक है, और पूछा है कि ये आपका अपर हाफ प्लेन को कहाँ मैप कराएगा, ऐसे था कुछ, नहीं अपर हाफ नहीं, ये वाला y जो है वो आपका पॉजिटिव था, हाँ अपर हाफ प्लेन ही, तो इसको तो आप सिंपली e टू दी पावर आई एक्स माइनस वाई लिख लो, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर माइनस वाई, ठीक है। ये मोड 1 देता है, e टू दी पावर माइनस वाई विल वेरी बिटवीन 0 to 1, और मोड 1 ये आ गया, यानी कि पूरा का पूरा यूनिट डिस्क आ जाएगा, डन, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे भी लड्डू बटे हैं। अब e टू दी पावर आई जेड पे अगर आपने काम नहीं कर रखा था, क्लास के अंदर मैंने e टू दी पावर आई जेड के अंदर दिखाए हैं कि कौन से प्लेन को कहाँ मैप कराता है, अलग से काम किया है इनके ऊपर, ठीक है ना। सो अगर ये भी नहीं देखा है तो फिर दिक्कत की बात है आपको, है ना, फिर आपको फिर से मेरी क्लासेस लेने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम आई प्रिपेयर, हाउ मेनी आई कैन, you know the concept, I think you need to start preparing now, you will know the concepts better, abhi aapko right now you will start knowing what exactly concepts are, and you have to get along with your practice questions, okay, you have to go through the chapter and at the same time you have to go through the practice questions and then discuss with people, okay। प्रियंका का क्वेश्चन है, सर कॉम्प्लेक्स वाले में जो पॉलिनोमियल के रूट पूछ रहे हैं ये नहीं था, 100 डिग्री का पॉलिनोमियल था जिसके आंसर 50 है, अच्छा पॉलिनोमियल गलत है, हाँ लग रहा है, काफ़ी आसान लग रहा है मुझे यहाँ पे को, ये वाला डिग्री भी 100 है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये क्वेश्चन है तो सिंपली आंसर इज लाइक आई कैन टेल यू कि सिंपली आंसर आपका ये है ना 50, बट अगर क्वेश्चन चेंज है, नंबर चेंज है, बट द कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम रोशे, दैट इज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू यूज रोशेस थ्योरम। अब रोशेस थ्योरम याद नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स की थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए, मैंने बताया भी था रोशे थ्योरम पढ़ाते टाइम कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और बना भी, हर बार बनेगा, पीछे अगली बार भी बनेगा, गेट अभी आ रहा है उसमें भी बनेगा। So right now my suggestion to all of you is look for GATE. If you have prepared enough for this exam, you can go for GATE. If your target is PhD, then GATE is very good opportunity for you, all of you. You can go for GATE exam and start preparing for GATE exam from tomorrow onwards or 1 or 2 days. अभी आगे क्या करना है, पेपर खराब हो गया है, अच्छा नहीं हुआ है, क्या करें, कुछ नहीं करना है, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर राइट नाउ। एक बार अभी अभी आप एक पेपर दे के आए हो, 2 दिन के लिए आराम से रेस्ट करो, कुछ नहीं सोचना है, फ्यूचर का कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है, ठीक है। टेक 1 or 2 days रेस्ट, जब आपका माइंड फिर से सेंस में आ जाए देन थिंक प्रैक्टिकली एंड देन डिसाइड कि आगे क्या करना है, ओके। सो दैट विल बी माई सजेशन फॉर नाउ। I'll bring back some more courses in the future, but I'll update you in the prior before them, maybe on the new year or something. So yeah, anyone else wants to ask anything? अच्छा, क्वेश्चन में करेक्शन, या प्रियंका आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि क्वेश्चंस में करेक्शन हो सकते हैं, इन दैट केस लाइक वी हैव टू वेट फॉर द क्वेश्चन पेपर देखिए बिना देखो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना या फिर ये बता देना पेपर आसान था ऐसा था, दैट ऑल आर नॉट ट्रू, दे आर लाइक जस्ट बस बता रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे,